Good morning, Sat Sri Akal, Salam, Namaste. I Ramo Singh have today general exception, third video, section 85, 86, 87 to 98, 92, IPC 1860. Friends, first we have to see section 85, 86. 85, 86 क्या डील करता है? Act of an intoxicated person. Or who are intoxicated persons? Drunkenness is a state of mind, and drunkenness is the state of madness for which the man is to blame. If a man chooses to get drunk, it is his own voluntary act. It is very different from madness. Madness से अलग है, which is not caused by any act of the person. One maxim is there: qui pecet ebrius luet sobrius. Let him who sins when drunk be punished when sober. However, section 85-86 protects an intoxicated person provided he got intoxicated by mistake or by force. Section 85 lays down that nothing is an offense which is done by a person who, owing to intoxication, is incapable of knowing the nature of the act, or that what he is doing is wrong or contrary to law. Provided that the thing which intoxicated him was administered without his knowledge, उसकी नॉलेज के बिना किया गया था या उसको नहीं बताया गया था, उसे किसी मिसकंसेप्शन में डाल करके इंटॉक्सिकेटेड किया गया था, अगेंस्ट विच विल, उसकी इच्छा के विपरीत था, जबरदस्ती था. Thus the test of drunkenness is the capacity to form an intention of committing the offense. In the case of insanity is differ. The test is capacity to know the nature of one's act. वहाँ committing an offense, the case of the capacity to form an intention of committing the offense. Committing the offense करने के लिए यहाँ पे act जो कर रहा है उसके nature के विषय में है insanity. However, insanity produced by drunkenness is a difference. अगर insanity जो भी उसको immunity मिलेगी drunkenness की स्थिति में डिफेंस के रूप में, वो कंडीशंस हैं, उनके कंडीशंस के हिसाब से मिलेंगे. सेक्शन 86 इट states the presumption for certain offenses committed by intoxicated persons. Thus, if an act is an offense only when done with a particular intention or knowledge, and such an act is committed by an intoxicated person, he will be presumed to have knowledge requisite for the offense unless he can show that he was intoxicated without his knowledge. कोई भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, ड्रंक पर्सन कोई भी ऑफेंस कमेंस करता है तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो ये माना जाएगा कि उसने जानबूझ के किया होगा, या वो जान करके रिक्वेसाइड इन्फॉर्मेशन उसके पास थी तब भी किया है. लेकिन अगर वो शो कर देता है कि मिसकंसेप्शन में बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी बिल के उसे इंटॉक्सिकेटेड किया गया है और उससे ये कारित कराया गया है, तो ऐसी स्थिति में उसे डिफेंस मिलेगा, जनरल एक्सेप्शन मिलेगा. इट मे बी नोटेड दैट देयर इज नो प्रिजम्पशन एज रिगार्ड हिज इंटेंशन. उसके इंटेंशन का कोई ऐसा रिगार्ड नहीं है, बस इंटॉक्सिकेशन वो स्वयं किया होगा, वॉलंटरी किया होगा तो नहीं मिलेगा. सेक्शन 87-91 एक्ट डन बाई कंसेंट. 87-91 lays down the laws as to how far act done by consent will be excused in law. It is important to note that the consent plays a very important role in criminal law. Its presence or absence often makes a difference between innocence and crime. क्राइम में और इनोसेंस को प्रूव करने में ये कंसेंट काफ़ी रोल प्ले करता है. सेक्शन 90 लेस डाउन व्हाट इज नॉट कंसेंट. सेक्शन 90 अब इसको क्लियर करता है कि क्या कंसेंट नहीं है. एक कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजुरी. अगर कोई बंदूक पिस्तौल लगा करके उसको फियर दिखा करके उसे कंसेंट ले रहा है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, और फैक्ट को गलत बता रहा है, कुछ सर्कमस्टेंसेज अलग हैं, फैक्ट जो है कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है, उस कंडीशन में ये कंसेंट नहीं मानी जाएगी. A consent given by a person who from the unsoundness of mind or intoxication is unable to understand. अगर अनसाउंड ऑफ माइंड है उसका
और दूसरा इंटॉक्सिकेटेड है तो उसे कोई भी कंसेंट ली जा रही है तो वो इसी स्थिति में नहीं है कि जो कंसेंट दे सके। ऐसे कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। ए पर्सन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, जो 12 साल से नीचे की एज का जो आदमी है या पर्सन है, उसका भी कंसेंट दिया हुआ कंसेंट नहीं माना जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट कंसेंट एंड सबमिशन आर नॉट द सेम। किसी ने सबमिशन दिया है वो कंसेंट नहीं हो सकती है, किसी ने कंसेंट दिया है कंसेंट सबमिशन के रूप में हो सकती है, लेकिन सारे सबमिशन कंसेंट नहीं हो सकते हैं। एवरी कंसेंट इन्वॉल्व्स ए सबमिशन बट not vice versa. Thus mere submission by a person who does not know the nature of an act is not consent. Section 8791 lays down that if certain acts are done with the consent of the victim, they will not amount to offenses. अस्पतालों में जो डॉक्टर लोग लेते हैं, सेक्शन 87 lays down that an act not intended or known to be likely to cause death or grievous hurt causes any harm to a person above 18 years of age who has given consent to suffer it is not an offense. ग्रेवियस हर्ट और मृत्यु कारित करने के अलावा अगर कोई आदमी कंसेंट देकर के कार्य कारित करवा रहा है या दूसरा कोई कर रहा है तो वो इसमें जनरल एक्सेप्शन में माना जाएगा। सेक्शन 88 सिमिलरली लेज डाउन दैट एन एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द विक्टिम्स बेनिफिट, विक्टिम के बेनिफिट के लिए एक्ट किया जा रहा है विद द विक्टिम कंसेंट इज नॉट एन ऑफेंस, उसकी कंसेंट से किया जा रहा है तो वो ऑफेंस नहीं है। द सेक्शन प्रोटेक्ट सर्जन्स एंड सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जन किसी पे ऑपरेशन करने से पहले सिग्नेचर करवाते हैं कि हम कर रहे हैं अच्छे के लिए, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं माने जाएंगे। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसको ये छूट नहीं मिलेगी, ये जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 89 सिमिलरली प्रोटेक्ट्स एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेंट पर्सन और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, कंसेंट ऑफ गार्जियन या वो इंसेंट पर्सन और चाइल्ड के कंसेंट का, गार्जियन की कंसेंट कहाँ ली जाएगी? जहाँ पे अनसाउंडनेस माइंड का कोई होगा या बच्चा होगा, बच्चे का कोई गार्जियन होगा, उससे ही लिया जाएगा, गार्जियन होगा, पेरेंट होगा, उनसे कंसेंट लिया जाएगा। ऐसी सिमिलरली प्रोटेक्ट एक्ट डन इन गुड फेथ, और उसके फायदे के लिए गुड फेथ में जो लिया जाता है वो कंसेंट मानी जाएगी। सेक्शन 92 क्लैरिफाइज दैट द मेयर पेक्यूनियरी बेनिफिट्स आर कवर्ड बाय द टर्म बेनिफिट अपीयरिंग इन सेक्शन 88 एंड 89, 88 और 89 जिसमें सर्जन वाले में भी और 89 में जिसमें बच्चे के लिए उसकी बेनिफिट के लिए वहाँ पे पेक्यूनियरी बेनिफिट का मतलब आर्थिक और आय पर डिपेंड होने वाली चीज़ है, जिसमें लगे कि वो 92 क्लियर करता है कि वो बेनिफिट जो है ना आर्थिक होनी चाहिए, बेनिफिट आर्थिक होनी चाहिए। अच्छा, कंक्लूसिवली हम समझते हैं, कंक्लूसिवली बी कैन अंडरस्टैंड कैसे समझें 87 to 91 को टोटल को अगर हम लमसम में लेते हैं तो सहमत से कारित होने वाले कार्य, इन पे सामान्य एक्सेप्शन है कि वो इंजेंटेड है और वो ऑफेंस में नहीं आएंगे। सेक्शन 87 बोलता है कि 18 साल के ऊपर के पर्सन की सहमत से कारित होने वाले जो कार्य हैं मृत्यु या सीरियस क्षति के अलावा की दशा में वो जनरल एक्सेप्शन में होंगे। सेक्शन 88 को विक्टिम्स बेनिफिट के लिए गुड फेथ में सर्जरी करने के लिए सहमति दिया, जनरल एक्सेप्शन में है। वो नॉन क्वालिफाइड सर्जन या मेडिकल प्रैक्टिशनर को ये जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 89 में बच्चों की बेनिफिट के लिए, किसी भी तरह की बेनिफिट के लिए, मतलब नहीं आर्थिक बेनिफिट के लिए या उनकी बेनिफिट के लिए जो सहमत दी जाती है, गार्जियन के द्वारा दी जाती है, उस पे भी एक्सेप्शन है, जनरल एक्सेप्शन मिलेगा। सेक्शन 90 में है अंडर फियर ऑफ इंजरी। सेक्शन 90 क्या कहता है? अंडर फियर ऑफ इंजरी एंड मिसकंसेप्शन इज नॉट कंसेंट। जो डरा धमका करके, गोली बारूद लगा करके और ये चाकू लगा करके कोई भी कंसेंट ली जाती है वो कंसेंट नहीं है। मिसकंसेप्शन का मतलब है कि मिसगाइड करके जो कंसेंट ली जाती है वो भी कंसेंट नहीं है। अनसाउंडेड की स्थिति में, इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में वो कंसेंट नहीं है, जनरल एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और 12 साल के बच्चे के नीचे का जो कंसेंट लिया जाता है वो भी जनरल एक्सेप्शन में नहीं माना जाएगा। सेक्शन 92 बेनिफिट मीन्स केवल आर्थिक आय और आय पर आधारित बेनिफिट जो है वो कवर है इसमें।
आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, और समझे हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच।